ministry. और हमने ये देखा, हमने ये जाना कि उनको कैसे परमेश्वर ने सेवा के लिए बुलाया, and how was his response to the call of God. और हमने ये भी देखा कि बुलाहट के प्रति उनका कैसा प्रत्युत्तर रहा. And when Elijah, his master, was going to heaven, what was his desire about his ministry? और जब उनके स्वामी एलिया स्वर्ग जा रहे थे, तब सेवा के प्रति उनका क्या नजरिया था. And after receiving the heavenly blessings and grace from above to do the ministry, how he was using that power of doing miracle for the glory of God. और हमने ये भी देखा कि जब उन्हें परमेश्वर की जो सामर्थ्य मिली और उन्होंने सेवा के प्रति कैसे उस सामर्थ्य का प्रयोग किया. And we have seen some special characteristics in the life of Elisha last week. और हमने कुछ विशेष स्वभावों को, विशेष कार्यों को एलीशा के जीवन में करते हुए देखा है. We have seen that even though he got the power from above in the double portion of the spirit of Elisha, he started doing the miracle right away, but he did not use that ability for his own glory. और हमने ये भी देखा कुछ ऐसे समय आए उनके जीवन में कि परेशानियों का सामना, लेकिन उन्होंने क्या है, परमेश्वर की जो सामर्थ्य उनको मिली थी उसका दुरुपयोग नहीं किया. And when the kings were trying to ask opinion about their war to God, and the people who said about this Elisha was not just as a prophet, but who was pouring water to the hands of Elijah. और जब ये दो राजा परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए आते हैं, तब भी वो क्या फेमस नहीं थे, और उनकी जनता और राजा यही जानते थे कि ये एलिया के हाथों को धुलाता था. So that much humble way he was able to present himself for the ministry of the Lord. और हमने ये भी देखा है कि एलीशा कितने नम्रता के साथ में परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं. But when he was standing in front of the kings, he was giving God's commands with all the power of God. और जब वे राजा के सामने खड़े होते हैं, बड़ी सामर्थ के साथ में, बड़ी हिम्मत के साथ में परमेश्वर के वचन को बोलते हैं. So he used the authority of God in doing his prophetical ministry. और उन्होंने जो परमेश्वर की सामर्थ को अपने भविष्यवक्ताई कार्य में ही प्रयोग किया है. But when we come to the next miracle in chapter 4, the beginning verses, he was so compassionate to the widow of the prophet. और हम लोग ये भी देखते हैं कि 4 अध्याय के शुरुआती वचनों में कि जो भविष्यवक्ता की जो पत्नी है, विधवा है, उनके प्रति कितने दयावान हैं वे. So according to the situation, he used the power of God and he used the compassion of God all for the ministry purpose. और हमने ये देखा कि परमेश्वर की जो दया है, जो दयालुता है, वो सेवा के लिए किस प्रकार से उन्होंने प्रयोग किया है. And today we have read chapter 4 verses 8 to 11. There we are going to see another miracle happen in the life of Elisha. और हम लोग अब जब 4 अध्याय का 8 वचन से हम लोग शुरुआत करते हैं, वहां पर एलीशा के जीवन से एक और हम चमत्कार देखते हैं. And this was one of the greatest miracle he has done in his life and ministry. और ये एलीशा के जीवन में और सेवकाई जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा चमत्कार है. Elisha used to travel for the ministry. और एलीशा क्या है, सेवा के लिए एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते थे. One day when he was traveling through Shunem, one lady who was a rich lady, she invited this prophet and his disciples for dinner. और एक बार जब एलीशा सुनेम को जा रहे थे, तब एक जो धनी स्त्री है, कुलीन स्त्री है,
और एलीशा और उसके शिष्यों को खाने पर बुलाया। When Elisha went there and when he experienced the hospitality of that family, Elisha was so comfortable whenever he was going through that way to go into the house and receive their hospitality. और जब जब एलीशा सुनेम के रास्ते से गुजरते थे और तब वे वहां जाते थे, क्योंकि जब ये स्त्री उनकी पहुनाई उनकी करी तो इनको बहुत आराम लगा और बहुत अच्छा लगता था। And when we study the character of Elisha in this part, we need to study the character of this Shunammite woman also. और जिस प्रकार से हम एलीशा भविष्यवक्ता के जीवन से अध्ययन कर रहे हैं, हमें ये सुनेम वासी एक कुलीन स्त्री है, उनके भी स्वभाव का अध्ययन करना चाहिए। In verse 9 we read like this: she said to her husband, behold, now I perceive that this is a holy man of God passing by us continually. और दूसरा राजा 4:9 में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं कि उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। So nowadays, if we sometimes we invite evangelists to our house for a meal. और कुछ आज के समय में क्या है, हम लोग प्रभु के सेवकों को अपने घर पे भोजन के लिए बुलाते हैं। We are so happy to do service for God's people. और हम लोग प्रभु के दास लोगों की सेवा करना या पहुनाई करना बहुत अच्छा लगता है। But when that servant of God is repeatedly coming to that house, then the attitude of the family may change. और जब एक प्रभु का दास जब बार बार उस घर में आएगा तो क्या है, उस घर का स्वभाव और नजरिया उस सेवक के प्रति अलग ही हो जाएगा। Here the thing happened something like that. और इस प्रकार से किसी के भी घर में हो सकता है। This lady invited them for dinner one day. और ये जो एक कुलीन स्त्री है, एक शाम के भोजन पे एलीशा और उनके शिष्यों को बुलाया। But then whenever they are traveling by that way, they used to go to that house. और जब वे लोग क्या सुनेम के रास्ते होके जाते थे तो वो स्त्री के यहाँ जरूर जाया करते थे। So the lady and her husband, they didn't have any children. और ये जो कुलीन स्त्री है और उसका पति है, उनके पास कोई संतान नहीं है। So here in verse 9 we see the attitude of that lady when the prophet came. और हम लोग यहाँ पर उस स्त्री की जो आदत या उनके स्वभाव को देखते हैं जब एलीशा उनके घर में आते हैं। See, when this prophet and his people are repeatedly coming to her house, the lady did not say to her husband, so it is so disturbing, she is coming again and again. So that kind of a conversation we don't see there. Yes. तो हम लोग क्या देखते हैं, एक सुंदर सी बात ये स्त्री के जीवन से, कि जब बार बार एलीशा उनके शिष्य उस रास्ते से गुजरते हैं, वे स्त्री के घर में आते हैं और उन्होंने क्या है, अपने पति से ये नहीं कहा, ये लोग बार बार आते हैं, हम लोगों को परेशान करते हैं। See, she was looking that servant of God as a holy man of God. और ये स्त्री कैसे उनको देख रही हैं कि ये परमेश्वर के पवित्र भक्त हैं। So when we study about Elisha, this lady's character also is very much impressive for all of us. और जिस प्रकार से हम लोग एलीशा के स्वभाव को हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, ये स्त्री के स्वभाव का अध्ययन करना अति आवश्यक है हमारे लिए। Even then, this group of people are coming repeatedly. She did not hesitate to do the hospitality over to them, and she did more and more for the glory of God.
और देखिए ये जो एक प्रकार का झुंड है प्रभु के लोगों का बार बार इनके घर पे आ रहा है और वे उनकी क्या पहुनाई कर रहे हैं, उनकी मेहमान नवाजी करने के साथ साथ उन्होंने कई गुना बढ़ के उनके लिए किया है। We know those days traveling means that they were not going by a car or a motorcycle or cycle, anything. They were walking and walking. और उस समय में हम जानते हैं उस जमाने में मोटरसाइकिल कार तो हुआ नहीं करते थे, पैदल चला करते थे, वे पैदल कई दिनों तक चल चल के जाया करते थे। So the lady has more compassion about these people of God, so that she is telling her husband in verse 10, please let us make a little walled upper chamber, and let us set a bed for him there, and a table and a chair and a lampstand, and it shall be when he comes to us that he can turn in there. और ये जो स्त्री है उनकी पहुनाई के साथ साथ में उनका जो जो प्रभु के प्रति जो हृदय है, खुला हुआ हृदय, प्रभु के लोगों की मदद करने का हृदय है, और अपने पति से कहा कि हम अपने घर के ऊपर एक छोटी सी कोठरी बनाएंगे और उसमें प्रभु के दास के लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी, एक दीवट रखेंगे कि जब जब वे यहाँ पर आया करेंगे तब तब उसमें टिका करें। She is not only giving a meal for the servant of God, she is willing to give a room, prepare a special room in the upper part of the house for him to take rest as he is passing by. और भोजन के साथ साथ में उस स्त्री ने क्या है अपने घर के ऊपर एक छोटा सा कमरा बनाया और उसमें ये प्रभु के दास के लिए वो कमरा विशेष है, उनके लिए एक विशेष खटिया और क्या कहते हैं एक मेज, एक कुर्सी, एक दिया दीपक वहां पर रखा है कि ये प्रभु के दास जब जब यहाँ पर आए वे इसमें रुका करें। And her husband also was willing to do that. और उनका जो पति है वो भी इस प्रकार से करने के लिए राजी हैं। So quickly they made a room and all the facilities within the room. And the next time when Elisha was passing by that way, when he came there, he saw the wonderful provision they made for this prophet and the disciple. और कुछ ही समय में उन्होंने ऊपर की कोठरी में वो कमरा तैयार कर दिया और जब एलीशा फिर से सुनेम के रास्ते से गुजरे वहां पर गए, उनके लिए आश्चर्यचकित करने वाली बात थी। And in verse 11 we read, one day he came there and turned into the upper room and rested. और हम देखते हैं कि एक बार फिर से वे सुनेम के रास्ते होकर आए और उनको ऊपरी कोठरी में उस स्त्री ने ठहराया। So Elisha was so much happy to see the love and hospitality of this family. और एलिशा वहां पर रुके और उन्होंने क्या है उस परिवार का प्रेम देखा और वे बहुत खुश हुए। So next morning, Elisha thought, what should I do as a response to this hospitality? और दूसरे जब सुबह हुई तो उन्होंने सोचा कि ये जो परिवार है मेरा इतना आदर सत्कार मेहमान नवाजी करते हैं, इसका बदला मैं इनको क्या दूं? And he called his servant Gehazi that he could talk to this Shunammite woman about this. और उन्होंने अपने जो दास हैं गेहजी उनको अपने पास बुलाया। And Gehazi was talking to this woman. और गेहजी क्या है, ये से कुलीन स्त्री से बात करने लगते हैं। And Elisha said to Gehazi in verse 13 that say to her like this, behold, you have been careful for us with all this care. What can I do for you? Would you be spoken for to the king
or to the captain of the army, any help I can do for you. और घेजी उनके पास जाके इस प्रकार से कहने लगते हैं कि हम आपके लिए क्या करें. Yeah, that is what we read in verse 13. और इस वचन को हम लोग दूसरा राय 4:13 में पढ़ते हैं. And the lady said, I have everything, so I don't want such things or anything material. I don't want. और जब स्त्री से कहा गया कि आपने हमारी इतनी पौनाई करी है, आपकी क्या बात है कि जिसको हम लोग कर सकते हैं. स्त्री ने कहा मेरे पास तो सब कुछ है, किसी बात की कमी नहीं. And the lady did not ask anything from Elisha. और उस स्त्री ने एलिशा से कुछ नहीं मांगा. But again, Elisha's heart was thinking about how to give a good response to her hospitality, and he was talking to Gehazi, his servant. और जब एलिशा के पास गेजी जाते हैं कि उनके पास तो सब कुछ है, लेकिन एलिशा के हृदय में कुछ चल रहा है और वे गेजी से कह रहे हैं कि मैं इनके लिए क्या करूं. And Gehazi said, truly she has no son and her husband is old. और तब गेजी ने एलिशा से वार्तालाप करते हुए उनसे कहा कि इस स्त्री के पास कोई लड़का नहीं है और उनका पति बूढ़ा है. Then Elisha thought, that is the best gift God can give to this family. तब ये परमेश्वर के भक्त एलिशा ने ऐसा विचार किया, ये परिवार के लिए ये सबसे अच्छा उपहार हो सकता है. And Elisha told this Gehazi to call the woman once again. और तब गेजी को कहा गया कि उस स्त्री को एक बार फिर से बातचीत करो. And in verse 16, we see Elisha was talking to this woman that at this season next year, you will embrace a son. And she said, no, my Lord, O man of God, do not lie to your maid servant. तब एलिशा उस स्त्री से कहते हैं, बसंत ऋतु में दिन के पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी. तब वो स्त्री कहती है, मेरे प्रभु, हे परमेश्वर के भक्त, ऐसा नहीं, अपनी दासी को धोखा ना दे. See, this family might have been praying for a child for several years. शायद ये जो परिवार है परमेश्वर से संतान के लिए काफी समय से प्रार्थना कर रहे होंगे. And even though they didn't have a blessing like blessings like children in their family, but they were willing to serve the people of God. और देखिए उन्होंने प्रार्थना किया होगा, लेकिन परमेश्वर ने संतान की आशीष उनको नहीं दी. फिर भी परमेश्वर के भक्तों की पहुनाई करने का इनके पास हृदय है और वो पीछे नहीं हटते थे. And God honored her heart. और परमेश्वर ने उनके हृदय का आदर किया. So the lady who was willing to give food to the servants of God, इस कारण वो स्त्री प्रभु के दास लोगों को अपने घर पर भोजन पर बुलाया करती. even then the prophet and the disciples came repeatedly. She was not hesitant to serve them. और ये जो प्रभु के दास है, जब वो उस गांव के रास्ते से निकलते थे, स्त्री के यहाँ आते थे, लेकिन उनके पहुनाई करने से वो स्त्री पीछे नहीं हटी. And not only that, because they were traveling a lot, this family wanted to give them a room to take rest. और ये जो परिवार है उनको ठहराने के लिए उनके लिए एक विशेष कमरे का आयोजन किया और बनाया. And the Lord honored their interest in serving God's people. और परमेश्वर ने उनके दिलचस्पी को, उनके आदर मान को आशीष किया. Actually, what did this lady do?
और असल में ये स्त्री उनके लिए क्या करती थी? She did not preach anywhere. और ये स्त्री क्या है? ये जो जो दयावान का हृदय है, She did not preach or teach anywhere. और ये जो स्त्री है क्या है, प्रभु के वचन को ना कहीं पर सिखाया है, ना उसका प्रचार किया है। She did not do anything big. और ये स्त्री ने कोई ऐसा बड़ा कार्य नहीं किया है। She just did the ministry of hospitality. और ये स्त्री ने केवल प्रभु के दासों की पहुनाई करी है, उनका मेहमान नवाजी की है। Dear brothers and sisters, actually, when we look, this lady has done a small thing, just giving food and serving the people of God. प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, केवल ये स्त्री ने प्रभु के दास लोगों को घर पे बुला के खाना खिलाया, कोई बड़ा कार्य नहीं किया। She had money in her hand, but she used the money for the glory of God. और वो स्त्री के हाथ में बहुत पैसा है, लेकिन वो पैसे को उन्होंने परमेश्वर की महिमा के लिए प्रयोग किया है। She wanted to use her resources for the glory of God. और वो स्त्री है, उनके घर में जो संसाधन है, जो धन दौलत है, वो परमेश्वर की महिमा के लिए प्रयोग करती थी। So just a hospitality, is that a big thing? सो आज हमारे सामने एक आज की कक्षा में ये सवाल हो सकता है, क्या प्रभु के दास लोगों की पहनाई करना, मेहमान नवाजी करना, घर पे बुला के उनको खाना देना, ये बड़ी बात है? When somebody is coming to your church and if they are traveling to different places, if you are inviting them to your house and giving food, is that a big thing? और क्या आपके कलीसिया में कोई व्यक्ति आता है और आपको पता लगता है कि कलीसिया के बाद वो कहीं बहुत लंबी यात्रा पर जाने वाला है, आप उनको खाने पे बुला लेते हैं, तो क्या ये बड़ी बात है? Yes, it is a big thing. हाँ प्रियो, ये बड़ी बात है। When we read Romans chapter 12, we see in the list of spiritual gifts, this hospitality also is a spiritual gift. और हम लोग रोमियो 12 अध्याय में पढ़ते हैं कि पहुनाई करना एक बहुत बड़ी सेवा है। See, it is a gift given by God. और देखिए, ये पहुनाई करना, मेहमान नवाजी करना, ये प्रभु का वरदान है। And if you are using that gift for the glory of God, God is there to reward you. और यदि आप जो वरदान प्रभु ने ये पहुनाई करने का आपको दिया है, आप करते हैं, परमेश्वर आपको एक बहुत बड़ा इनाम देंगे। To get a child in their family, this lady might have prayed several times. और देखिए, एक स्त्री ने अपनी संतान होने के लिए सब परमेश्वर के सामने बहुत बार मांगा होगा। But not only she was praying and crying, she was doing her service for the Lord. और देखिए, ये संतान मांगने के साथ साथ में ये स्त्री परमेश्वर के दास लोगों की पहुनाई, मेहमान नवाजी भी कर रही। And God was so much pleased in that action. और परमेश्वर इस कार्य को देखते हुए बहुत खुश हो गए हैं स्त्री के ऊपर। That is why God has given the best gift for her in her family. इसलिए स्त्री ने इस पहुनाई करने के चलते उन्हें बहुत बड़े उपहार से नवाजा है। A son is given in that family. उस स्त्री को संतान के रूप में बेटा दिया गया। So if you are doing something for the Lord wholeheartedly, God is always faithful to give you a reward for that. और यदि आप अपने पूर्ण हृदय के साथ में परमेश्वर की सेवा करते हैं, परमेश्वर उनका पूर्णतया आदर करते हैं और आपको एक बहुत बड़ा उपहार देते हैं। And the work for the Lord may not be a big thing that all the people can see, or preaching, or standing on a stage, or not like that. Just sitting at home
and serving God's people. शायद जो प्रचार करना, प्रभु का वचन सिखाना या देना तो सब लोग देख सकते हैं, लेकिन आप जो घर में रह के प्रभु के दास लोगों की जो सेवा करते हैं, उनको पहुनाई करके, ये शायद एक बड़ा कार्य ना हो। I know many of the sisters might have been listening to this Bible study. और मैं जानता हूं, मैं ऐसा मानता हूं कि हमारी और भी बहनें इस बाइबल के अध्ययन को सुन रही हैं। It is a great encouragement for all of you. ये हमारे लिए उत्साहित करने वाली बड़ी बात है। If you are willing to cook and give food for God's people, that also is honored by God. और जब आप अपने घर में प्रभु के दास को बुला के उनके लिए खाना पका के खिलाती हैं, ये बहुत बड़ी बात है बहनों। Not only that, even if you are giving some food to a poor man who is walking by, it is also be honored by God. और जब आप एक भूखे को आपके घर से जो गुजरते हैं उनको खाना खिलाते हैं, परमेश्वर की नजर में बहुत बड़ा कार्य है। It will be rewarded in eternity. Not only that, it will be rewarded even at your earthly life. और ये देखिए, आपके पृथ्वी पर रहते हुए जो जीवन में भी बहुत बड़ी आशीष है, और अनंत काल में भी इसको आशीष के रूप में इसको गिना जाएगा। Jesus Christ has told an example like this in his earthly ministry. और प्रभु यीशु मसीह ने अपने इस पृथ्वी पर जो उन्होंने सेवा की, इस प्रकार से कहा है, If you are giving a glass of water to a person, considering him as a disciple of Christ, it will be rewarded. आप जब एक व्यक्ति को जो सेवक है प्रभु यीशु मसीह का, यह समझकर उसको एक पानी का गिलास भी पिलाते हैं, One glass of water, if it is rewarded, how much it will be if you are giving a tea? और जब आप एक गिलास पानी को देखिए, इतना उसका इनाम दिया जा सकता है, तो एक चाय का कितना इनाम होना चाहिए। And if you are adding a vada or something with that, it will be rewarded more. और जब आप चाय के साथ साथ में कुछ नाश्ते में करके उनको देते हैं, कितना उसका उपहार दिया जाएगा, कितना उसको आदर दिया जाएगा। And if you are giving a lunch or a dinner, how much more it will be. और आप देखिए, जब आप दोपहर का या शाम का भोजन किसी दास को देते हैं, वो कितने आप उपहार के भागी हो जाएंगे। It is not a simple thing, it is a big thing before the Lord. ये एक आसान बात नहीं है, प्रभु के सामने बहुत बड़ी बात है। Now, after Elisha went back after 1 year, as God promised, a son was born into this family. जिस प्रकार से परमेश्वर ने एलीशा को वायदा किया था, इस स्त्री को बेटा देने के लिए 1 साल के बाद एलीशा आते हैं और उस घर में बेटा को देते हैं। And some years passed by. और कुछ सालों के बाद उस घर में, and the boy was growing. और वो बेटा दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा था। And in verse 19 we see he has a headache one day. और वचन 19 में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं कि एक दिन उस बेटे के सिर में दर्द होने लगा। And the father was in the field. और पिता वो खेत में था। And he asked his servants to take him to his mother. और पिता ने सेवक से कहा कि इस बेटे को इसकी माता के पास ले जाओ। And mother was so anxious about this boy's sickness, and he was keeping her in her lap. और वो माता अपने बेटे को गोद में लिए हुए है और उसके जो सिर दर्द है उसको कम करने का कोशिश कर रही है। But after some hours, this boy passed away. और कुछ ही घंटों के बाद वह बेटा मर गया। That was a very sad situation in her life. और उस समय उस घर में उस स्त्री के जीवन में
बहुत बड़ी दुखद घटना हुई। And the next events happened after the death of this child was also so much encouraging. और देखिए ये जो बेटे की जो मृत्यु हुई है, दुखद घटना तो है, उसके साथ साथ में एक उत्साह करने वाली घटना भी वहां पर हुई। Normally, a mother, when a child was dead, she will totally powerless, and she will be so weak, and she will not respond to anything. और सामान्यतः हम लोग देखते हैं कि किसी माता का बेटा मर जाए तो वो एक तो क्या है, हतोत्साहित हो जाती है, सामर्थ्यहीन हो जाती है, वो किसी से कुछ बोलती नहीं है। And instead of crying and crying, she kept her faith within her, and she became stronger and stronger. और हम ये देखते हैं इस स्त्री के जीवन में रोने की बजाय वो अपने विश्वास में दृढ़ होती गई। And what did she do? और देखिए वो स्त्री ने क्या किया। Verse 21, we read like this. और 21 वचन में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, She has taken this boy in her hand and went up to the upper room where Elisha was usually resting. और हम क्या देखते हैं कि उसने जो ऊपरी कोठरी प्रभु के दास के लिए बनाई थी, वहां पर उस खाट पर अपने बेटे को लिटा दिया। And she has taken this boy and placed him in the bed of the prophet and locked the room. और उसने उस स्त्री ने अपने बेटे को ऊपर ले जाकर वो एलिशा की खाट पर लिटा दिया और द्वार बंद कर दिया। And we may be thinking that what an odd action she is doing. और हम लोग ये विचार करेंगे स्त्री के कार्य को देखते हुए कि ये क्या कर रही है। But the whole event, when we read, it was an act of faith. लेकिन ये सब घटना केवल विश्वास के ऊपर ही चल रही है। And after doing that, the first step she did it, we see in verse 22, she called her husband. और वास्तव में ये स्त्री क्या कर रही थी, हम 22 वचन में उसको देखते हैं। And she called her husband first. पहले उसने अपने पति को बुलाया And said, give me, send me one servant and one of the donkeys, and I may run to the man of God and return. और तब उसने अपने पति से कहा कि मेरे साथ में एक गधे के साथ में एक सेवक को भेज दे, ताकि मैं परमेश्वर के भक्त के यहाँ झटपट होके आ जाऊं। And husband said, why should you go today? It is a new moon, or it is not a new moon day or a Sabbath. There may not be a possibility to see the prophet of God. और देखिए वो स्त्री के पति कहते हैं कि आज वहां क्यों जाना है, आज ना तो नया चांद का ना विश्राम दिन है। But he said, no, I need to go. लेकिन स्त्री कहती नहीं, आज मुझे उनके पास जाना ही होगा। The dead body of his boy is in the room. It is closed, and she is traveling to a distant place. देखिए वो बेटे को प्रभु के दास के कमरे में सुला के द्वार बंद करके और वो एक लंबी यात्रा पर निकल रही है। Because she was rich, she has this animal transportation. और देखिए वो हम जानते हैं ये स्त्री अच्छी खासी धनी है और वो एक उनके पास अच्छी सुरक्षा है, जानवर है यात्रा करने के लिए। And she traveled to Mount Carmel with upon a donkey. और देखिए वो कार्मेल पहाड़ की तरफ जाती हैं गधे के द्वारा। And she was going very fast, and she said to her servant, don't stop anywhere until I say. और ये जो स्त्री है क्या बहुत तेजी में जा रही है और अपने सेवक को कह रही है कि रुकना नहीं है, बस गधे को तुम हाँकते जाओ। In verse 25, she reached Carmel, the Mount Carmel. और वचन 25 में हम देखते हैं कि स्त्री कार्मेल पर्वत को पहुंच जाती है।
And when the prophet and his disciple Gehazi, they were seeing this woman was coming to them from a distance. और ये जो प्रभु के भक्त एलीशा है दूर से उस स्त्री को देखते हैं। And Gehazi said, Elisha said, isn't that the woman from Shunammite? और वे गेहजी से कहते हैं देखो वो शायद सुनेमी स्त्री लग रही है। And he came to her and asked, are you okay? और जब वो उनके पास आ जाती है तो वो कहती हैं क्या सब कुछ ठीक है? And your husband and child, everyone are okay? क्या आपका बेटा और आपका पति ठीक है? And the woman said, it is well. और स्त्री ने उत्तर दिया हाँ सब कुछ ठीक है। See, everything is so sadful situation around her, and she is telling in faith that it is well. और देखिए उनके घर में एक दुख का समय है, लेकिन प्रभु के दास के सामने विश्वास के साथ वे कहती हैं सब कुछ ठीक है। Many of us know about a famous English hymn named "It is well with my soul." और अंग्रेजी में एक ऐसा गाना है कि मेरी आत्मा के साथ सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। That song was written in a same kind of a situation. और ये जो गाना है, ये जो गीत है, ऐसी ही परिस्थिति में दुख के समय में लिखा गया। Horatio Spafford was a rich man. पढ़ना सर। Horatio Spafford, the man who wrote that hymn, was a rich man. होरेशियो जो है वो क्या है, बहुत धनी व्यक्ति है, उन्होंने इस गीत को लिखा। And one day he had 3 daughters and 1 son. और उनके पास 3 बेटी 1 बेटा था। And his boy was having some kind of a disease and he passed away. और इस उनके लड़के को कोई रोग था, बीमार रहता था और एक दिन वो मर गया। So that made him so sad. और वो व्यक्ति बहुत उदास है। And next he was living in the town of Chicago. और वह अमेरिका के एक शिकागो शहर में रहते थे। And there was a fire happened in several years ago in Chicago. और कुछ बहुत सालों के पहले उस शहर में आग लग गई थी। And his business center was burned because of this fire. और उनका जो व्यापार का जो केंद्र था वो उस आग में जल गया था। So the second problem happened. First his son died, and secondly his business was burned. और पहला उनका बेटा मृत्यु को प्राप्त हो गया, दूसरा उनका जो व्यापार था वो आग में जल गया। So he told his wife, shall we have a travel so that we may need to overcome this situation of trouble. और उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि अपने पत्नी से कहा हम लोग एक यात्रा पर जाएंगे ताकि हम लोग इस दुख से बाहर आ सकें। So they booked a ticket to travel in a ship. और वे जहाज में यात्रा करने जाते हैं। And they all went up to the shipyard, and suddenly he got a message from Chicago that in order to settle some settlements about his business, he has to come back. और जब वे जहाज में बैठते हैं तो शिकागो से एक संदेश आता है कि अपने व्यापार को व्यवस्थित करने के लिए। So he told his wife and children, the daughters, to go in this ship, and I will follow in the next ship. और उन्होंने कहा कि आप इस जहाज में निकल जाओ, मैं दूसरे जहाज से आता हूँ। And after a few days, he got a telegram from his wife.
और कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद अपनी पत्नी के द्वारा उनको पत्र मिला। The message was saved alone. और मैसेज ये था, केवल मैं ही बची हूँ। And when he was checking what happened, finally he understood that there was a shipwreck happened, then the ship sank into the sea. और जब उन्होंने उस समाचार को और जानने का प्रयास किया तो उन्हें पता चला कि जहाज टूट गया और पानी में डूब गया। And all his daughters were dead, and only his wife was saved. और उनकी जो 3 बेटियां थी वो उस जहाज में ही डूबने के कारण मर गईं और केवल उनकी पत्नी बची। So in few years, like what happened in the life of Job, he also lost everything. He and his wife only were left. और जिस प्रकार से अय्यूब के जीवन में हुआ था, केवल आज पति और पत्नी ही बचे। And in the next ship, he was traveling to see his wife. और वे दूसरे जहाज से यात्रा कर रहे हैं कि अपनी पत्नी को देखें। And the captain said, when they reached in a particular place, the captain said, "This is the place where the ship was sank, and your daughters also were here." और जब वो जहाज उस जगह पे पहुंचता है जहां जो पहले जहाज डूब गया था, और जो जहाज का जो कैप्टन है वो इनको कहते हैं कि यहाँ पर आपकी बेटियां, वो जहाज डूब गया था वो ये जगह है। Actually, suddenly his heart was so much troubled, and he was not able to control himself. But suddenly a peace came into his heart, and the same word this Shunammite said to Elisha, he also said to God. और जब वो कैप्टन ने इन बातों को बताया, उनका हृदय वो दुख से भर गया और एक शांति का ऐसी ऐसी लहर उनके जीवन में आई, जिस प्रकार से सुनेमी स्त्री ने एलीशा से कहा। And he wrote a song there, "It is well with my soul." और तब उन्होंने इस गीत को लिखा, सब कुछ ठीक है, सब कुछ कुशल है। When peace like a river attendeth my soul, when sorrows may come, everything may be bad in front of me, but it is well with my soul if God is in control. और जो पीस, जो शांति है, वो नदी के पानी की तरह बहती चली आ रही है मेरे हृदय में। सब कुछ जल गया, लेकिन सब कुछ शांति में है, सब ठीक है। See, like this Horatius Ford, originally this Shunammite woman, her heart was so much troubled because the dead body of his son is in the house, and she traveled all the way to the Mount Carmel, and he is before the prophet of God and said, "It is well." और देखिए होरेसियस फाफोट के हृदय को और इस सुनेमी स्त्री के हृदय को, वो यात्रा करती चली आ रही है प्रभु के दास के पास, एलीशा के पास आकर क्या कहती है, सब कुछ कुशल है, सब कुछ शांति में है। And in verse 27, Gehazi went to her, and suddenly Prophet Elisha told him, "Just leave her alone. There is something troubling her heart." और जब प्रभु के दास गेहजी से कहते हैं कि उन्हें अकेली छोड़ दो, उनके हृदय में कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो व्याकुलपन है। And Elisha said, "The Lord has hidden it from me." और एलीशा ने कहते हैं कि वो कुछ तो मेरे से छुपा रही है। And the Lord did not reveal what happened to this woman to Elisha. और परमेश्वर ने एलीशा को ये नहीं बताया स्त्री के विषय में कि उनके जीवन में क्या हुआ। And the lady explained everything happened in a few hours before. और कुछ घंटों के पहले क्या हुआ, इस स्त्री ने
एलीसा को सब कुछ बता दिया। And Elisha said, okay, God will do wonders for you. And Elijah first said, Gehazi, you go and do like this, and put a stick upon the face of this boy, so he will be raised. और फिर एलीसा गेजी से कहते हैं, तुम जाओ और ये मेरी छड़ी ले जाओ हाथ में, और उस बेटे के मुंह पे इस छड़ी को रख देना, और वो बेटा उठ खड़ा होगा, जीवित हो जाएगा। But this woman, the mother of this boy, said, I won't go if Elisha, the prophet, also wouldn't come with me. और लेकिन ये बेटे की माँ सुनेमी स्त्री कहती है, जब तक एलीसा नहीं जाएंगे मैं नहीं जाऊंगी। So Elisha also agreed. तो प्रभु के दास एलीसा सहमत हो जाते हैं। But Gehazi went ahead, and he ran into the house and opened the door and put the stick upon the face of this boy. लेकिन गेहजी जल्दी जल्दी जाके आगे जाते हैं और एलीसा की छड़ी ले जाते हैं, उस कमरे को खोल के और बेटे के मुंह पे रखते हैं। Maybe Gehazi's thinking was, if I put this staff on the face of this boy and he raises up, then it is a miracle that happened with my hand. और गेजी इस प्रकार से सोच रहे हैं कि जब मैं इस छड़ी को बेटे के ऊपर रखूंगा और वो यदि जीवित हो जाते हैं, तो जो ये जो चमत्कार है मेरे हाथों के द्वारा हो जाएगा। But God did not allow to do that. लेकिन परमेश्वर ने उनको ये आज्ञा नहीं दिया ऐसा होने के लिए। I mean, verse 32, Elisha is coming there and he saw the boy is lying on his bed, the upper room bed, and he is dead. और जब एलीसा आ जाते हैं और लड़के को खाट पर हुआ पड़ा पाते हैं, and Elisha said, leave us alone, and he closed the door. The body of the boy was there, and Elisha was there, and the door was closed. तब एलीसा ने कहा, हमें अकेला छोड़ दो, और केवल वो लड़का जो मृत पड़ा हुआ है और एलीसा उस कमरे में थे, और उन्होंने द्वार को बंद कर दिया। And what did he do? लेकिन वो क्या कर रहे हैं? And he was praying to God. वे परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। And every success of all the miracles happened in the life of Elisha and Elijah, which was because of prayer. और एलिया और एलीसा के जीवन में चमत्कार हुए हैं, उनका मेन जो कारण है वो है प्रार्थना। And after prayer, he has he lied upon the boy, and the heat was transferred from Elisha's body to the boy's body. और 34 वचन में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं कि एलीसा उस बेटे के ऊपर लेट जाते हैं, और वो जो गर्मी है शरीर की वो उस बेटे के अंदर परिवर्तित हो जाती है। And after some time he gets up and walk up and down. Then he did it repeatedly. और वे बेटे पर पसर के और वे बार बार ऐसा कर करके प्रार्थना कर रहे थे। And finally this boy started sneezing. और कुछ समय के बाद ये लड़का क्या है, सांस लेने लगा। And he opened his eyes. और वो लड़के ने अपनी आंखें खोली। And he called Gehazi to bring the woman. और तब एलीसा ने गेजी से कहा, स्त्री को बुला लाओ। And he said, take your child back. और एलीसा कहते हैं, अपने बेटे को वापस उठा लो। And what did the lady do? और वह स्त्री ने क्या किया? In verse 37 we read like this, then she went in and fell at his feet and bowed herself to the ground, and she took up her son and went out. और वो स्त्री ने क्या किया, हम लोग
दूसरा राजा 4 का 37 में पढ़ते हैं, वह भीतर गई और उसके पांव पर गिर कर भूमि पर झुक कर दंडवत किया, फिर उसने अपने बेटे को उठाकर निकल गई। There are many miracles Elisha has done, और ऐसे बहुत सारे चमत्कार हैं जो एलीशा ने किए, but this was the greatest miracle Elisha has done. ये एलीशा के और भी चमत्कारों में से महान चमत्कार है। But the reason behind this great miracle was the Shunammite woman. और ये जो चमत्कार के पीछे जो है वो सुनेमी स्त्री है, And her faith was the reason for this miraculous raising up of the child. और इस ये घटना का और जिस चमत्कार के पीछे स्त्री का विश्वास है जिसने मृत बेटे को जीवित कर दिया। When the boy was dead, normally everybody will call the neighbors and the society, and there will be a funeral service. Finally, they will bury the body, but this lady did not do that. और सामान्यतः तो ऐसा होता है, जब घरों में मृत्यु हो जाती है, रिश्तेदारों को बुलाते हैं, पड़ोसियों को बुलाते हैं और उसको क्या है उसका जो अंतिम संस्कार कर देते हैं। She believed that the God who was able to give her a son, even in her old age and the old age of her husband, he is ready, he is able to raise him back to her. और देखिए ये स्त्री जो क्या है उनका बुढ़ापा है और परमेश्वर ने उनको ये संतान का सुख दिया, आज वो संतान मर गया है और परमेश्वर उनके द्वारा उसको जीवित भी किया है। When Abraham was asked to sacrifice his son, the same faith worked in Abraham. और जब इब्राहिम से अपने बेटे इसहाक को बलिदान करने के लिए परमेश्वर ने कहा, समान वही विश्वास इब्राहिम के जीवन में उनके जीवन में था। If God is telling, I will do it. और परमेश्वर ने कहा इसको करो। But even when after the sacrifice from the ashes, God can give him back to me. और वो कहते हैं कि जब मैं इसको बलिदान करूंगा परमेश्वर मुझे दोबारा देंगे। So that faith worked even before killing his son. God said, no, don't do it. I now know that you love me more than your son. और इब्राहिम को इतना विश्वास था और हम जानते हैं अपने बेटे को बलिदान करने के पूर्व ही परमेश्वर ने कहा, नहीं, अब मैं जान गया हूं तुम मुझसे प्रेम करते हो। The woman who was having a service mind to do the hospitality, और ये स्त्री को हम देख रहे हैं कि एक जो पहुनाई करने का हृदय है, and that was honored by God and the greatest gift was given to her family. और इसका उनके जीवन में उनके परिवार को परमेश्वर ने आदर किया और एक महान वरदान दिया है। When the Lord has taken her child through death, still she believed that the God who has given him will be able to raise him back to me. और देखिए वो स्त्री को इतना विश्वास है कि जिस परमेश्वर ने मुझको दिया है वो इसको जीवित भी करेंगे। And she traveled a lot to Mount Carmel and met Elisha and Gehazi. And Elisha traveled to this room and did the greatest miracle he did that season. और स्त्री का बेटा मर गया, वो कारमेल प्रभु के दास को मिलने गई और प्रभु के दास एलीशा वापस आते हैं और बेटे को जीवित करते हैं। We may be thinking that this is Elisha's miracle, but it is the reason behind is the Shunammite woman. और आप सोचेंगे कि ये जो चमत्कार है वो एलीशा ने किया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके पीछे वो स्त्री का विश्वास है। When we study the character study of Elisha, we may think that, oh, I am not able to do such kind of great works like Elisha.
और आप ऐसा सोचेंगे इस चमत्कार को देखते हुए, इस कहानी को देखते हुए, शायद मैं एलीशा के जैसे नहीं कर सकता। But we all can do small kind of service like this Shunammite woman. और हम लोग इस सुनेमी स्त्री के जैसे बहुत सारी सेवाएं कर सकते हैं। We can give a glass of water or a meal to others. हम लोग दूसरों के लिए प्रभु के दास के लिए एक गिलास पानी दे सकते हैं, भोजन तो दे सकते हैं। Everything you did for God will be honored by God. आप जो कुछ भी सेवा परमेश्वर के लिए करते हैं, परमेश्वर आपको, आपकी सेवा को आदर करते हैं। And the second lesson, even when the trouble comes, don't concentrate on the trouble, but you look up to God and take the action of faith. और जब भी कोई भी परेशानियां आ रही हैं, आप व्याकुल ना हो, इधर उधर ना देखें, केवल परमेश्वर को देखें, उस पर, उन पर भरोसा रखें। And God has His own way to respond to your faith. और परमेश्वर आपके विश्वास का एक अच्छा प्रतिफल देते हैं। May the Lord help us to respond to this, the characters, both the characters, because whenever God is asking you to do something, be ready to do that. Also, be willing to give others and serve others. और जब कभी भी परमेश्वर आपको ऐसा मौका देते हैं, वरदान देते हैं, आप परमेश्वर की सेवा करने के लिए तत्पर रहें, हाजिर रहें। May His name be glorified. परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। Thank you so much, sir, for a wonderful study. And I was thinking how the wonderfully the word we are getting. और मैं जानता हूँ that we know that many times we have read this story, we know, but how this is connecting with the faith, and we are learning is a small story for 1 hour, and it may go more and more also. प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, हम लोग देखिए ये कहानी हम सब जानते होंगे, लेकिन ये फर्स्ट टाइम वी आर लाइक दिस, एक एंकरेज हमको मिल रहा है, एक उत्साह कि हमारा विश्वास भी मजबूत हो, हम भी प्रभु में चमत्कार के भागी बने, हमारे द्वारा भी परमेश्वर की सेवा बढ़ने पाए। एक बार फिर से फिलिप के एंड सर का ग्वालियर बिलीवर्स असेंबली की ओर से, बीडीटीआई की ओर से वी थैंक यू सो मच सर फॉर दिस वंडरफुल कैरेक्टर स्टडी। जुड़े हुए सभी भाई बहनों का मैं धन्यवाद करता हूं, और इसी प्रकार से आप जुड़ते रहें और अध्ययन का लाभ उठाते रहें। हम अपनी कलीसिया के लिए, जवानों के लिए, सभी के लिए आशीष का कारण बने। If we are calling brothers and sisters to join this Bible study, it's a big ministry. वे लोग इस वचन को सुन के अपने विश्वास में they will be getting power and strong in their faith. तो आइए हम लोग किसी ना किसी रीति से परमेश्वर की सेवा करने के लिए अवसर ढूंढें। एक बार कहें उनसे, भाई आज आप जुड़ना हमारे साथ, आज प्रभु का वचन सुनने के लिए। आप उनके घर पे जाकर अपने मोबाइल को लेके आप वहां पर भी वचन सुन सकते हैं, उनको बैठा के। परमेश्वर हमें सहायता करेंगे। एक बार फिर से जुड़े हुए सभी भाई बहनों का मैं धन्यवाद देता हूं, और फिलिप के एंड्रू सर का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आइए हम इस सभा को प्रार्थना के साथ में समाप्त करेंगे। मैं आग्रह करूंगा हमारे बीच में जॉर्ज मसीह अंकल दिल्ली से हैं, प्लीज लीड अस इन प्रेयर। हमें प्रार्थना में अगुवाई करें अंकल। जॉर्ज मसीह अंकल।